सर ये ग्रुप फोटो लाल चढ़ायो अच्छा मुझको दिल लाल विराजे सुतोरी हर को हाथ लिए गुण लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को जय देव जय देव प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ सर एक बार सब लोग हाथ ऐसे कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा Please come and join hands while lighting of the lamp. महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय improve the metal, I mean convert the metal to gold or silver, whatever it is. Thank you. Wish you a very happy and knowledgeable session throughout the day. Thank you. Thank you, President sir. We will definitely would love to hear from Dr. IPS Oberoi. Please come and say a few words to our young and arthroscopic surgeons. Hi, good morning. Thank you very much for inviting me to come to this beautiful meeting. I see so many familiar faces, and it's always a good feeling to come back to Patna again. We did a life surgery course a couple of years back, and then many years back a life surgery even at PMCH for the ACL reconstruction. I think shoulder is something which is still evolving all across the world. अच्छा ठीक है सर ठीक है And push the anchor in. But then soft tissue or something anchor, we need to make such a drill. They are just physically invasive. देखिए The problem with these anchors is that they can get loose. The trick is that we have to actually hold this liberal tissue. As I told you, it's not here. Try to retrieve the retinol wire. Oberoi sir, this is Arvind. Arvind ji, bolo. Sir, you always go from this 3 o'clock, then 4 o'clock, then 5. को यहीं सॉल्व कर देते हैं और सेटिस्फाई करते हैं आप अपने काम से उनको, तो दैट इज इन इटसेल्फ ए ग्रेट मैसेज जो होता है। विस्परिंग, ईयर विस्परिंग, एक दूसरे से बात आगे बढ़ती है, वही बात है। और फिर आप तो हैं ही। Because in this area there is an excellent nerve, you don't want to take a drill bite and just to try again. Sir, do you always use the lasso or do you use the... Sir, do you always use a lasso or a scorpion also sometimes? Yes, scorpion is usually tight. Indian patients before like this. Knotless anchor arthroscopy is a simplest kind of labral repair which you can achieve without any hassles of knot tying, knot loosening. The material is good quality, it does not break the tails. That's the whole aim of the knotless anchor. So go down, pull the and put this the anchor, pull, and see if you can cut it like this. Again a small tail, but that's okay. See how the labrum has started sitting. इसके बाद छोड़ देना। The Orthopedic Association started a new thing, arthroscopy workshop today, and we are delighted over here to have a three dynamic legend among us: Dr. IPS Oberoi, Dr. Deepak Joshi, and Dr. Sandeep Singh, and he is very much experienced about this technology. And I must say
This credit goes to our whole department of PMCH, all faculty, Dr. Bharat Singh, our इसमें खोला वाला 2 स्मॉल बटन होल्स करके दूरबीन, छोटी सी दूरबीन अंदर डाली, इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे पोर्टल से डाला और अंदर ही अंदर स्टिच कर दिया, ओवर। और रिहैबिलिटेशन इससे बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि बाहर से हमने कुछ काटा ही नहीं। अगले दिन से मरीज चला सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है, अगले दिन 2 दिन में घर जा सकता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस टेक्निक, और दिस इज ए हाईटेक सर्जरी। तो दूसरा, हम लोग का एक एसोसिएशन होता है, एक इंडिया के लेवल पर और एक स्टेट के लेवल पर। तो इंडिया के लेवल पर जो एसोसिएशन है, जो डिफरेंट स्टेट को बिलोंग करते हैं, और डिफरेंट स्टेट का भी एक एसोसिएशन होता है। तो हम लोग ने एक ऐसा बनाया हुआ है कि डिफरेंट स्टेट में जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, इसको हम लोग उसको शेयर करते हैं कि हम लोग आज PMCH आर्थ्रोस्कोपिक कोर्स कर रहे हैं, ये आज हम लोग दिखा रहे हैं उसको, आप भी देखिए। और वहाँ से भी कुछ लोग आते हैं कि आप वहाँ पर क्या हो रहा है। तो इस माध्यम से डिफरेंट स्टेट के लोग भी जान रहे हैं और इस चीज़ को वहाँ के लोगों के बीच में प्रोपगेट करते हैं, और ऑल इंडिया लेवल पर भी ये चीज़ मैसेज जा रहा है। तो इस तरह से पूरे कंट्री के लेवल में अवेयरनेस हो रही है कि पटना में ये तरह का कोर्स हो रहा है, जिसमें इस तरह के लोग स्पीकर अभी दिल्ली से हैं, एक भुवनेश्वर से हैं। तो भुवनेश्वर के लोग को मालूम है, ये अपने प्रेजेंटेशन वहाँ पर जो करके जा रहे हैं उनको बताएंगे। दिल्ली से हमारे हैं जो सर्जन हैं, वो बताएंगे। तो इस माध्यम से सबको प्रोपगेट होता है। हम लोग एक दूसरे से असेंबल है पूरे नेशनल लेवल पर, इवन इंटरनेशनल भी इसका जाता है। वाइट की हम लोग ने यहाँ कराया, इसको हम लोग उस एसोसिएशन में डालते हैं कि वो हम लोगों ने ऐसा पटना में कोर्स कराया। तो अवेयरनेस का टूल्स बहुत है। आपका सबसे बड़ा माध्यम कि आप इसको कवर करेंगे तो उसको पता चलेगा, और हम लोग अपने लेवल एसोसिएशन के माध्यम से बताते हैं तो उनको पता चलेगा। तो इस तरह से हम लोग इंटरमिंगल हैं, सबको ये मैसेज जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। ये जो मरीज आते हैं, क्या ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स एक्सीडेंट के मेजॉरिटी ऑफ जो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है वो तो एक्सीडेंट के चलते हैं। ये जो इतने सारे हड्डियां टूट रही हैं, लोग हॉस्पिटल भरे हुए, क्यों? आज से 20 साल पहले ऐसा नहीं होता था। और जो ट्रॉमा की क्वालिटी, टाइप ऑफ इंजरी, पहले एक हड्डी टूट गई काफ़ी है, अभी एक साथ 5-5, 10-10 हड्डियाँ टूटी हुई, इतनी बुरी तरह से टूटती हैं कि फिर साल्वेज करना मुश्किल हो जाता है ना। वो एक्सीडेंट के चलते हैं और हाई वेलोसिटी ट्रॉमा के चलते हैं। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक्स उतना ही नहीं है, डे टू डे एक्टिविटी में या डिजेनरेशन के चलते जो प्रॉब्लम होता है वो सब भी ऑर्थोपेडिक्स में ही आता है। ऐसा नहीं कि केवल एक्सीडेंट के चलते हो रहा है। और पॉपुलेशन बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रही है, हमारा मोर्टेलिटी रेट बहुत हो गया, अब एजिंग ज़्यादा हो रहा है। एक ज़माने में 60 के ऊपर अधिकतर लोग चल बसते थे, आप देख रहे 80-90 में लोग काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं। इवन डॉक्टर्स का रिटायरमेंट 67 है, बहुत जगह 70 है। तो ये जो लोग ज़्यादा उम्र में एक्टिव हैं, तो उनको और बीमारियों के अलावा ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम भी उसी अनुपात में हो रहा है। और वो एक्सीडेंट से नहीं है, वो एजिंग के चलते हैं, और उनका भी केयर होना ज़रूरी होता है। घुटनों का दर्द, घुटनों का आर्थराइटिस, हिप का आर्थराइटिस, बैक स्पाइन का, हमारे स्पाइन सर्जन इज अ वेरी गुड स्पाइन सर्जन। तो ये सब क्या है, जैसे जो गाड़ी ज़्यादा दिन चलेगी उसमें ज़्यादा खराबी आएगी। इट्स सो सिंपल। तो अब लोगों की लॉन्जिविटी बढ़ गई है, 80, 85, 90 के लोग हैं, जी रहे हैं तो जीना है, तो बिना दर्द के जीना है और आराम से जीना है। हैप्पी रहने के लिए आपको दर्द नहीं होना चाहिए, और कारण कुछ भी हो, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम कुछ भी, ट्रॉमा के चलते हो, एजिंग के चलते हो, या ऐसे ही डिजेनरेटिव प्रोसेस के चलते हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही तो एम है हम लोगों का। तो इसलिए डिफरेंट, जैसे नेक्स्ट प्रोग्राम जो मेरा होगा वो जेरियाट्रिक्स पर होगा। ओल्ड एज के चलते जो प्रॉब्लम लोगों को हो रहा है वो उसको कैसे सॉल्व करें, उसका क्या इलाज करें। तो डिफरेंट एस्पेक्ट से, ट्रॉमा तो एक है ही, इंजरी तो एक है ही। ऑर्थोपेडिक हम लोग एक जो बात किया कि ट्रॉमा तो सब जगह भी हो रहे हैं। आज का जो कार्यशाला है ये हाई टेक्नोलॉजी का टेक्निक पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें एक ओपन सर्जरी नहीं है, एक छिद्र के सहारे आपके शोल्डर, नी जॉइंट या हिप जॉइंट, कहीं भी उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम बहुत रेयर होता है, कॉमन चीज़ नहीं है। इसके लिए एक्सपर्ट जो चीज़ होते हैं उसका योगदान होता है, जो इंटरेस्टेड हैं उसके लिए हम लोग
बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की तरफ से हमारे प्रेसिडेंट रंजीत सिंह, माई सेल्फ सेक्रेटरी डॉक्टर महेश प्रसाद, इस तरह के कार्यशाला का हम लोग आयोजन करते रहते हैं। ये जो सर्जरी हो रही है इसमें, इसका कोर्स का नाम है PMCH शोल्डर कोर्स, आर्थोस्कोपी कोर्स। इसमें ख़ास तौर पे जो इतने फैकल्टी हैं, PMCH एक बड़ा अस्पताल है, उस तरह से 4 मेडिकल कॉलेज हमारे हैं, नालंदा मेडिकल कॉलेज, एम्स और IGIMS। ये सारे जगहों पर इस तरह के ट्रीटमेंट हाई टेक्नोलॉजी के होते हैं, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ। तो उन लोगों के लिए इस तरह की कार्यशाला हम लोग करते हैं कि जिसमें सारे लोगों को कम से कम पता तो चले कि इस तरह की सर्जरी हो रही है, और सारे जगह ये सर्जरी होती है। तो इस टेक्नोलॉजी को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच में जाए, इसके लिए इस तरह की कार्यशाला करते हैं। और PMCH ये कोर्स जो है उसका कार्यक्रम कर रहा है, और सारा बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन इसको कार्य रूप दे रहा है, जिससे सारे बिहार के लोगों को ये पता चले कि इसमें कैसे टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए, उसको कैसे सिखाया जाए, जिससे कि आने वाले मरीज को सुविधा हो सके। और ये सही है, आसाम को कैटर करते हैं हम, बहुत सारे नेपाल को कैटर करते हैं, बिहार तो अपने में बड़ा है ही, लेकिन कहीं न कहीं जो बात आज बहुत पहले थी उससे हम थोड़ा सा लैग किए हैं इधर हाल फिलहाल, मैंने आज दिन लास्ट 20 ईयर उसी को कैचअप करने के लिए। जब तक मेरा मैन पावर ट्रेंड नहीं होगा, ये लड़के जब ट्रेंड होके नई टेक्नोलॉजी से ट्रेंड होके काम नहीं करेंगे, तो फिर आप कैसे मैसेज दे पाएंगे कि हम बढ़िया काम करते हैं, और लोग कैसे आएंगे? आपको अपनी ऊंचाई बढ़ानी होगी, तभी लोग आपकी तरफ आएंगे, नहीं तो इसीलिए टू अपग्रेड योरसेल्फ रेगुलरली, और ये अपग्रेडेशन का हिस्सा है। जैसे मैंने कहा, इसके बाद हम लोग करेंगे जेरियाट्रिक्स पर, उसके बाद एक और सर्जरी जो पहले छोड़ दिया जाता था, नए लड़के हैं हिप में प्रॉब्लम है घूम रहे हैं, हिप प्रिजर्वेशन, अब उसको छोड़ दिया तो 30 साल में वो चलने लायक नहीं रह गया। अब उसमें ऐसा होगा कि कैसे करें कि इसी उम्र में, कम उम्र में, हिप में जो अर्ली स्टेज में जो प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करके उसकी लॉन्जिविटी बढ़ा दें। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिसको हम लोग डील करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उसको परिप्रेक्ष्य में रखते हुए अपने प्रोग्राम को हमने टेलर मेड किया है। दूसरी चीज़ और कहना चाहता, मतलब होता है ज्वाइंट, किसी चीज़ को खोल के देखा, और अभी आप देख रहे 2 छोटे छोटे छिद्रों से पूरी सर्जरी हो जाएगी। दैट इज एडवांस, दैट इज एडवांसमेंट। अभी पहले कहते थे तो पूरा ये जांग चीर दिया, उसका प्लेट लगा दिया, अब एक छोटा छेद यहाँ से, 1-2 छेद इधर से, और अब पूरी सर्जरी हो गई। तो वो तो एडवांसमेंट है, और अभी बहुत सारे एडवांसमेंट और है जिसका फ़ायदा हम लोग नहीं दे पा रहे हैं ड्यू टू फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत महंगा है, उसके जो गैजेट्स हैं बहुत महंगे हैं, और बिहार बीइंग द पुअरेस्ट अमॉन्ग द लॉट्स, आई मीन अब यू कंसीडर होल ऑफ इंडिया, तो उसका तो होना चाहिए सपोर्ट ना, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। हमारी तरफ से भी कमी है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कमी है, लेकिन फिर भी उसी में हम लोग वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कैच अप, और कर रहे हैं। अभी जो